بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیئر کے راجا کا بھی کرپا نظریہ دکھیا پہ ڈالنا رے، خواجہ معین الدین کی آنکھوں کے تارے، خواجہ معین الدین کی آنکھوں کے تارے، بابا کے لال نارے، یا صابر تورے مندروا کی بن کے پجاری، ٹک ٹک دیکھوں صورتیا تیاری، درشن کی بھیک ملے اچھا ہماری، خالی نہ ٹالنا رے، یا صابر پیا نینوں میں کجرا، بالوں میں گجرا، پیا میں گھنگرو لچکے کمریا، ناچوں گی گولر تلے اے میرے صابر، گھونگٹ اگاڑنا رے، یا صابر پیا فرشتوں نہ میرا سنگار کر جاؤ، سنگار یوں ہی لئی شاندار کر جاؤ، ناچوں گی گولر تلے، 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 ناچوں گی گولر تلے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجت الپاک کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسو بابا جان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی ماں راستی ماں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماموں جان سید علی بابا کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواج بابا جان حاضرین کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان سب کی پیاری بیٹی ہماری بہن سید وغیرہ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں کلیئر کے راجا حاضر ہے۔ نورانی سلامی میں کون حاضر ہے آج؟ آج نورانی سلامی میں کلیئر کے شہنشاہ حاضر ہے۔ ہاں ہاں، ساری دنیا جانتی ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، بھائی یہ کلیئر کے راجا کون ہے؟ ساری کائنات جانتی ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے کلیئر کے شہنشاہ کون ہے۔ بھائی نورانی سلامی میں بتا رہے ہیں آپ، بھائی نورانی سلامی میں آج بھائی مخدوم علاء الدین حاضر ہے، صابر پاک حاضر ہے، صابر پاک حاضر ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے۔ بھائی یہ صابر پاک کن کے لال ہے؟ یہ صابر پاک کن کے شہزادے ہے؟ سب کو پتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ صابر پاک کن کے لال ہے؟ یہ صابر پاک بھائی کن کے شہزادے ہیں؟ ہر کوئی کو پتا ہے، غوث الاعظم دستگیر کے لال ہے، عبد القادر جیلانی کے شہزادے ہے۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو، وہ بابا فرید گنج شکر کے لال ہے، وہ بابا فرید گنج شکر کے شہزادے ہے بھائی یہ صابر پاک۔ ہاں ہاں بھائی یہ صابر پاک نے بھائی وہ شان پائی ہے، ہاں ہاں، غوث الاعظم دستگیر کے ہی ذریعے وہ شان پائی ہے صابر پاک نے۔ ہاں ہاں، بابا فرید کے ہی ذریعے
वो शान पाई है भाई ये साबिर पाक ने। हर कोई को पता है भाई ये साबिर पाक का मकाम क्या है, हर कोई जानते है भाई ये साबिर पाक का मर्तबा क्या है। भाई कलियर के राजा हाजिर है नूरानी सलामी में, प्यारी बहन सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है भाई ये साबिर पाक। हाँ, कलियर शरीफ से आए हैं, दुनिया वाले जमाने वाले कलियर शरीफ से आए हैं ये साबिर पाक। और भाई जहाँ भी जाते हैं तो भाई देखो बहुत शान और शौकत से बैठा करते हैं। हाँ भाई देखो नूरानी सलामी में हाजिर है तो भाई बहुत शान और शौकत से बैठा करते हैं, बहुत ठाट से बैठा करते हैं जब जब नूरानी सलामी में आते हैं ये साबिर पाक। भाई देखो भाई बरसों से सदियों से साबिर पाक हिंदल वली गरीब नवाज से मिलने आया करते। हाँ तो भाई देखो उनके रोजे मुबारक पर उनके भाई दरबार में उनके साथ भाई ये साबिर पाक भाई बहुत शान और शौकत से बैठा करते हैं, यानी कि बहुत ठाट से बैठा करते साबिर पाक। जहाँ भी जाते हैं तो बहुत शान और शौकत से बैठा करते साबिर पाक। बगदाद शरीफ में जाते गौसुल आजम दस्तगीर के सामने ये साबिर पाक कलियर के राजा बहुत शान और शौकत से भाई बैठा करते साबिर पाक। हाँ यानी कि बहुत ठाट से बैठा करते साबिर पाक। दुनिया वाले जमाने वाले नूरानी सलामी के जरिए भाई देखो ये साबिर पाक आप लोगों को बता रहे हैं भाई ये साबिर पाक का मर्तबा क्या है। हाँ भाई देखो वो हरम शरीफ में भी पहुँचते हैं। हाँ हरम शरीफ में पहुँचते हैं, काबे शरीफ में पहुँचते हैं, बहुत शान और शौकत से बैठा करते साबिर पाक, यानी कि भाई बहुत ठाट से बैठा करते साबिर पाक। भाई देखो मदीने शरीफ में भी पहुँचते हैं, प्यारे नाना जान रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत भाई शान और शौकत से बैठा करते ये साबिर पाक, यानी कि बहुत ठाट से बैठा करते साबिर पाक। भाई यानी कि भाई हमारा जो खानदान है जो सारा के सारा घराना है मौलाए कायनात, हाँ इमाम अली मकाम जहाँ भी जाते हैं तो बहुत ठाट से बैठते साबिर पाक। हाँ भाई देखो ये साबिर पाक को रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ ये साबिर पाक को कहने वाला कोई नहीं है। हाँ भाई साबिर पाक अपनी मर्जी से बैठा करते जैसे भी बैठा करते। बता रहा है रात हो रहा है नूरानी सलामी के जरिए भाई वो इसलिए बैठा करते शान और शौकत से हर जगह, वो इसलिए बैठा करते ठाट में हर जगह। भाई देखो ये साबिर पाक के साथ भाई देखो भाई वो हमारी प्यारी दादी जान जो जन्नतों की सरदार है फातिमातुल ज़हरा भाई उनकी दुआ है। साबिर पाक के साथ हमारी प्यारी दादी जान फातिमातुल ज़हरा की दुआ है। भाई ये साबिर पाक के साथ देखो इमाम अली मकाम की दुआ है। हाँ पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हाँ फरमाते प्यारे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मेरे प्यारे लाल मेरे प्यारे शहजादे आप बहुत शान वाले हैं, आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है। भाई आप भाई जहाँ भी जाएंगे जहाँ भी बैठेंगे तो शान और शौकत से बैठेंगे, आपको कोई मना करने वाला नहीं। यानी कि पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है साबिर पाक के साथ, और उन्होंने फरमाया है हाँ साबिर पाक को भाई चाहे जैसे भी बैठे जैसे भी उठे भाई उन्होंने भाई फरमाया है आपकी मर्जी। तो नूरानी सलामी में भाई देखो ये साबिर पाक हाजिर है। हाँ कलियर शरीफ से आए हैं अजमेर शरीफ में। हाँ भाई साबिर पाक है भाई सैयद उम्मुल वरा प्यारी बहन के पास, प्यारे मोइनुद्दीन हसन की भाई गली में हाजिर है, प्यारे मोइनुद्दीन हसन की नगरी में हाजिर है। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली के रोजे मुबारक पर हाजिर है भाई ये कलियर के राजा ये साबिर पाक हाजिर है। तो दुनिया वाले जमाने वाले भाई किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले।
हम खुद अपना बयान सुनाएंगे जमाने वाले तो सुनाते हैं दुनिया वाले, सुनाते हैं जमाने वाले। हाँ हाँ, तो सुना रहे भाई, मोबाइल के जरिए सुना रहे। हाँ हाँ, नूरानी सलामी के जरिए सुना रहे आप लोगों को। पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है साबिर पाक से कि ए मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे शहजादे, मेरे प्यारे दुलारे, आप जहाँ बैठेंगे तो शान और शौकत से बैठेंगे। जिस जमीन पर बैठेंगे भाई शान और शौकत से बैठेंगे। तो भाई देखा, ये साबिर पाक जिस जमीन पर बैठा करते भाई वो जमीन थर्राती है, वो जमीन घबराती है। हाँ हाँ भाई देखो, ये पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप वो शान वाले हैं भाई, जिस जमीन पर बैठेंगे वो जमीन भाई देखो आपसे भाई थर्राएंगी। साबिर पाक मेरे लाल, मेरे प्यारे शहजादे भाई, आपसे घबराएंगी जमीन। हाँ हाँ भाई, आप भाई जहाँ बैठेंगे आपके आस पास भाई जितनी दीवारें हैं, जितनी दीवारें हैं भाई वो सारी की सारे दीवारें आपसे थर्राएंगी। साबिर पाक मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे शहजादे, आपसे घबराएंगी हर दीवार। भाई आप जहाँ जाएंगे मेरे प्यारे साबिर पाक, आप जहाँ जाएंगे भाई देखो वो जगह भाई, अगर भाई पहाड़ है, सारा क्या सारा पहाड़ आपको देखकर थर्राएगा। हाँ हाँ, सारा के सारा पहाड़ आपको देख के घबराएगा मेरे साबिर पाक। तो भाई साबिर पाक भाई जहाँ जाते हैं भाई देखो वो भाई सारा के सारा इलाका थर्राता है साबिर पाक को देखकर। सारा के सारा इलाका भाई देखो घबराता है साबिर पाक को देखकर। तभी तो भाई जहाँ जाते हैं साबिर पाक तो बाद भाई ठाट में बैठा करते, क्योंकि पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया है, गौसुल आजम दस्तगीर ने वो मकाम दिया है, साबिर पाक को वो मकाम दिया है प्यारे दादा जान अब्दुल कादिर जिलानी। भाई ये साबिर पाक के प्यारे दादा जान है, हर कोई जानता है, सारा जमाना जानता है, सारी कायनात जानती है भाई गौसुल आजम दस्तगीर भाई साबिर पाक के दादा जान है। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई वो शान अता की है साबिर पाक को, अब्दुल कादिर जिलानी ने वो मकाम दिया है साबिर पाक को। तो भाई इसीलिए तो साबिर पाक हाँ हाँ भाई देखो बहुत शान और शौकत में भाई बैठा करते हैं। आज नूरानी सलामी में जो हाजिर है तो बता रहे हैं, हर कोई को बता रहे हैं, सारी दुनिया वाले को बता रहे, सारे जमाने वाले को सुना रहे हैं। भाई देखो जब कलियर की सरजमीन पर पहुंचे, हाँ हाँ कलियर की सरजमीन पर पहुंचे तो भाई देखो सारी दुनिया वाले को दिखा दिया था, सारे जमाने वाले को दिखा दिया था कि भाई ये साबिर पाक क्या है। हाँ हाँ भाई देखो वहाँ कदम रखे, अपने कदम मुबारक रखे साबिर पाक ने, तो भाई कलियर शरीफ की सारी के सारी जमीन थर्राने लगी, सारी के सारी जमीन घबराने लगी। हाँ हाँ भाई साबिर पाक को देख के भाई कलियर शरीफ का भाई सारा के सारा भाई देखो भाई दीवारें घबराने लगी, सारी के सारी दीवारें थर्राने लगी। हाँ हाँ सारा के सारा भाई महल, हाँ हाँ जो बेजान है, हाँ हाँ पहाड़ है भाई, वो सारे के सारे साबिर पाक को देख के थर्राने लगे, साबिर पाक को देख के घबराने लगे भाई, एक दूसरे में कहने लगे कि भाई साबिर पाक भाई कलियर शरीफ में आए हैं, साबिर पाक कलियर शरीफ में आए हैं। हाँ हाँ भाई यूँ थर्राते थे, यूँ घबराते थे, मगर भाई देखो जब कलियर के अंदर उस दौड़ में उस जमाने में जो रह रहे थे भाई वो नहीं जान रहे थे, वो कहाँ से जानेंगे, जिनके आंखों में भाई पट्टी लगी है, पट्टी बंधी है, उन्हें क्या नजर आएगा। हाँ हाँ उन्हें क्या नजर आएगा भाई, अल्लाह ताला की क्या राज है, उन्हें क्या नजर आएगा, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या राज है भाई, जिनके आंखों में भाई पट्टी बंधी होती है उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। तो भाई वहाँ रहने वाले
वहाँ जीने वाले, वहाँ सांस लेने वाले साबिर पाक को भाई देखकर नहीं पहचान रहे थे, नहीं जान रहे थे। भाई देखो, जो साबिर पाक भाई कलिया शरीफ में पहुंचे, बहुत सताया गया कलिया शरीफ में साबिर पाक को। हाँ हाँ, अब भाई साबिर पाक को भाई किनका इंतजार था? कलिया शरीफ में पहुंचे तो किनका इंतजार था? अल्लाह ताला का इंतजार था, प्यारे हमारे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था, गौसुल आजम दस्तगीर का इंतजार था। वहाँ से इशारा आया, हाँ, वहाँ से इशारा आया। वो दीवारें भाई साबिर पाक को देखकर थर्राती थी, घबराती थी। वो समझ गई, हाँ हाँ, वो समझ गई क्या अब साबिर पाक के जलाल से हम नहीं बचेंगे। अल्लाह का इशारा आया है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आया है, गौसुल आजम दस्तगीर का इशारा आया है। वो समझ गई दीवारें भाई, वो थर्राने लगी, घबराने लगी। अब साबिर पाक के जलाल से हम नहीं बचेंगे। कलिया शरीफ की भाई सारी के सारी जमीन समझ गई, हाँ, सारी के सारी जमीन को पता चल गया। वो समझ गई कि भाई साबिर पाक के जलाल से अब हम नहीं बचेंगे। भाई वो जानने लगी अल्लाह ताला का इशारा आया है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आया है, हाँ हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर का इशारा आया साबिर पाक को। वो थर्राने लगी, वो घबराने लगी, हाँ हाँ। भाई देखो, पहाड़ और भाई हर जगह भाई घबराने लगा उस वक्त, जिस वक्त भाई अल्लाह का इशारा आया, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आया, हाँ हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर का इशारा आया। थर्राने लगे, घबराने लगे कि अब हम साबिर पाक के जलाल से नहीं बचेंगे। हाँ हाँ, तो देखो दुनिया वाले, जमाने वाले, देखो यहाँ नजर उठाकर, हाँ हाँ भाई सुनो, भाई गलती कौन कर रहा है? हाँ हाँ, गलती कौन कर रहा है? गलती भाई वो शैतान कर रहा है, गलती बंदे कर रहे हैं, हाँ हाँ, गलती इंसान कर रहा है, गलती भाई इब्लिस कर रहा है। भाई सजा किसे दे रहे हैं? भाई सजा किसे मिल रही है? भाई जमीन को सजा मिल रही है, दीवार को सजा मिल रही है, हाँ हाँ, पहाड़ों को सजा मिल रही है, हर कोई चीज को सजा मिल रही है। भाई देखो, इसीलिए तो भाई हर बेजान चीज घबरा रही थी, थरथरा रही थी क्या भाई देखो वो गलती करने वाले कर रहे बंदे, हाँ हाँ, वो गुस्ताखी करने वाले साबिर पाक की बंदे कर रहे हैं, साबिर पाक की गुस्ताखी करने वाले इंसान कर रहे हैं, इंसान के साथ भाई इब्लिस है, शैतान है, वो कर रहे हैं। उनकी गलती की सजा भाई हमें मिलेगी, उनकी गलती की सजा हमें मिलेगी। तो भाई घबराएगा, हर कोई घबराएंगी बेजान चीज, हाँ हाँ। भाई देखो जिस वक्त साबिर पाक का जलाल आया, हाँ हाँ, भाई यूं भाई नजर उठाकर देखा तो सारी के सारी दीवारें, दीवारें किसे कहते हैं? यानी कि भाई उस जमाने में, उस दुनिया के अंदर जो अपने अपने कमरों में रह रहे थे, हाँ हाँ, अपने अपने घरों में रह रहे थे। भाई देखो उनको देखा, सारी दीवार को देखा, भाई वो उसी पल भाई देखो खत्म हो गई, सारी के सारी दीवारें खत्म हो गई। हर जगह भाई कलिया शरीफ में भाई देखो साबिर पाक का जलाल नजर आ रहा था, सारी के सारी जमीन भाई कांप रही थी, हिल रही थी, हाँ हाँ, यानी कि जल जला नजर आ रहा था, हाँ हाँ। भाई मस्जिद को गिराने वाले कौन है? अल्लाह ताला के घर को गिराने वाले कौन है दुनिया वाले? अल्लाह ताला के घर को गिराने वाले ये साबिर पाक है, हाँ हाँ, अल्लाह ताला के घर को गिराने वाले साबिर पाक है जो नूरानी सलामी में हाजिर है, हाँ हाँ। हर कोई को भाई देखो खत्म करने वाले कौन है? ये साबिर पाक है, हाँ हाँ। अब देखो भाई दुनिया वाले, जमाने वाले, यहाँ गौर करो, हाँ हाँ। कहने वाले कहते हैं भाई जो एक लेडीज होती है वो बहुत नापाक होती है,
एक लेडीज जो होती वो बहुत नापाक होती है। भाई देखो वो लेडीज भाई दरगाह में भी नहीं जा सकती है, दरबारों में नहीं जा सकती है। अब भाई देखो भाई वो लेडीज के पास इतने बड़े बड़े सरकार कैसे आ सकते हैं? ये साबिर पाक में जो इतना जलाल है, ये साबिर पाक में इतना जलाल है, मुंबई से लेके अब तक भाई सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर हो रहे हैं। तो ये साबिर पाक का जलाल कहाँ है? दुनिया वाले कहाँ है? नहीं है। हाँ, साबिर पाक का जलाल नहीं है भाई, यहाँ तो कोई जलाल नहीं है। हाँ, यहाँ तो कोई जलाल नहीं। दुनिया वाले वो बता रहे वो किस लिए। हाँ, वो भी बता रहे साबिर पाक जो नूरानी सलामी में हाजिर है। सैयद उम्मुल वरा भाई मुंबई में रहती थी। हाँ भाई नूरानी सलामी से हर कोई जान रहा है, हर कोई को पता चल रहा है भाई सैयद उम्मुल वरा कहाँ से आई है। मुंबई से आई है। मुंबई में भाई देखो सैयद उम्मुल वरा रहती थी अब्दुल कादिर जिलानी के चिल्ले मुबारक के सामने, यानी कि भाई हमारे प्यारे दादा जान के चिल्ले मुबारक के सामने रहती थी। भाई देखो उनसे ही भाई निस्बत रखी थी। गौसुल आजम दस्तगीर प्यारे दादा जान से ही निस्बत थी। हाँ, यानी कि भाई उनसे ही चाहत थी। हाँ, उनकी ही चाहत भाई अजमेर शरीफ में ले आई सैयद उम्मुल वरा को। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी का चिल्ला भाई उनके सामने था। गौसुल आजम दस्तगीर दादा जान का चिल्ला मुबारक उनके सामने था। अब्दुल कादिर जिलानी की नजर सैयद उम्मुल वरा पे थी। प्यारे दादा जान की नजर सैयद उम्मुल वरा पे थी। हाँ भाई देखो एक एक अंदाज पसंद आया। गौसुल आजम दस्तगीर को एक एक अंदाज पसंद आया। अब्दुल कादिर जिलानी को, अब्दुल कादिर जिलानी ने सैयद उम्मुल वरा को पसंद किया। भाई देखो अपना लिया, अपने करीब कर दिया, बेटी मान ली। अब बेटी मान ली। गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया भाई अजमेर शरीफ में सैयद उम्मुल वरा आई थी, यहाँ रह रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि भाई सुनो हमारे घर वाले, हमारे आल भाई हर कोई को फरमाया कि भाई देखो ये सैयद उम्मुल वरा को हमने अपनाया है, हमने बेटी मानी है, हम इनके पास हाजिर हो रहे हैं। हाँ भाई, हम भाई इनके पास हाजिर हो रहे हैं। हमारा जलाल यहाँ नहीं है तो हमारे आल, हमारे लाल भाई आप लोग भी भाई इनके पास हाजिर होएंगे। आप भाई आपका जलाल नहीं दिखाएंगे। साबिर पाक ने सुन लिया, साबिर पाक ने सुन लिया भाई प्यारे दादा जान का फरमान। भाई साबिर पाक भाई देखो यही कहने लगे मेरे प्यारे दादा जान, जब आपका जलाल नहीं है, आपने अपनाया है, तो हम कैसे जलाल दिखा सकते हैं? हम कैसे जलाल दिखा सकते हैं मेरे प्यारे दादा जान? इसीलिए तो भाई साबिर पाक का जलाल यहाँ नहीं है। गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई जिसे अपनाया उसे भाई हर कोई ने अपनाया, दुनिया वाले जमाने वाले। यहाँ देखो नूरानी सलामी के तरफ गौर करो। हाँ भाई गरीब नवाज हिंदल वली ने अपनाया। हाँ प्यारे मोइनुद्दीन हसन ने अपनाया तो उनकी आल ने अपनाया। ख्वाजा फखरुद्दीन में भी बहुत जलाल है दुनिया वाले। हाँ भाई वह ख्वाजा फखरुद्दीन ने फरमाया मेरे प्यारे बाबा जान, हाँ मेरे प्यारे बाबा जान जिसे आपने अपनाया है उसे हमने अपनाया है। जब आपका जलाल नहीं है तो हमारा जलाल कैसे आएगा? हाँ भाई देखो ये सब राज है। तो भाई ये भाई देखो सैयद उम्मुल वरा का अंदाज जो है एक एक पसंद आया है। भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर को और हिंदर वली गरीब नवाज को। भाई देखो इमाम अली मकाम को पसंद आया है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया है। इसीलिए तो भाई देखो हर कोई सलामी में भाई हाजिर हो रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के लाल हाजिर हो रहे, प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज के लाल हाजिर हो रहे, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल हाजिर हो रहे, दसों बाबा जान हाजिर हो रहे, हर कोई हाजिर हो रहा है दुनिया वाले जमाने वाले।
अब भाई ये साबिर पाक जो हाजिर है तो नूरानी सलामी के जरिए फरमा रहे हैं कि भाई देखो मोमिन मुसलमान, हाँ, मोमिन मुसलमान का तो भाई गौसुल आजम दस्तगीर ने बेड़ा पार कर दिया है, दुनिया वाले जमाने वाले। मोमिन मुसलमान का भाई हिंदल वली गरीब नवाज ने बेड़ा पार कर दिए। ये साबिर पाक हाजिर है तो साफ साफ फरमाते हैं, किसी से नहीं डरते साबिर पाक। भाई साफ साफ कहते हैं, साफ साफ फरमाते कि भाई वलियों के सरदार जो बन के आए हैं वो वलियों के सरदार के आगे भाई कोई वली जा सका है क्या? भाई कोई वली नहीं जा सकता है। हिंद अलवली गरीब नवाज जो बन के आए हैं, यानी कि सारे हिंदुस्तान के शहंशाह बन के आए हैं, सारे हिंदुस्तान के राजा बन के आए, वलियों के राजा बन के आए हैं। तो ये साबिर पाक के भी राजा है। हिंदल वली गरीब नवाज साबिर पाक के भी शहंशाह है, हमारे सरदार है गरीब नवाज मोइनुद्दीन। तो वही तो कह रहे भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर ने तो दुनिया वाले जमाने वाले मोमिन मुसलमान का बेड़ा पार कर दिया है। हिंदल वली गरीब नवाज ने मोमिन मुसलमान का बेड़ा पार कर दिया है। हाँ, तो नूरानी सलामी के जरिए भाई देखो आप लोगों की जो आंखें बंद है वो आंखों को खोलो। हाँ, आप लोगों के आंखों के आगे जो पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी को हटाओ भाई, हटाओ और पट्टी को खोलो तो नजर आएगा भाई आप लोगों को कि नूरानी सलामी क्या है, गौसुल आजम दस्तगीर क्या है, हिंदल वाले गरीब नवाज क्या है, वो बताते हैं साबिर पाक आपको। दुनिया में जमाने में भाई सदियों से बहुत सालों से यही चलता आया है भाई। देखो यही चल रहा है, यही कह रहे कहने वाले कि भाई वली अल्लाह को भाई हम नहीं मानते हैं। जो सुन्नी मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, उनको कह रहे हैं कि वली अल्लाह को हम नहीं मानते हैं, वली अल्लाह की बारगाह में हम नहीं जाते हैं भाई, हम तो डायरेक्ट सीधे भाई अल्लाह ताला के पास पहुँचते हैं। देने वाला भाई अल्लाह ताला है, कर्म करने वाला अल्लाह ताला है, मदद करने वाला अल्लाह ताला है, बेड़ा पार करने वाला अल्लाह ताला। ऐसे बहुत से भाई कहते कहने वाले। तो भाई देखो ये साबिर पाक तो भाई देखो नूरानी सलामी में हाजिर है तो बता रहे हैं, उन कहने वाले को सुना रहे हैं। भाई सुनो, जब भाई देखो कोई बंदा मर जाता है, हाँ भाई कोई बंदा खत्म हो गया, मर गया, कब्र में उतारा गया, भाई हर बंदे को ये साबिर पाक अपने आंखों से देखा करते हैं। क्योंकि भाई साबिर पाक मामूली नहीं है, दुनिया वाले जमाने वाले मामूली नहीं है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है, उनकी आल है, मामूली नहीं है। तो भाई देखो हर मरने वाला भाई देखो जिस वक्त कब्र में डाला जाता है उनको देखा करते हैं, हर मुर्दे को देखा करते हैं। जब कोई सुन्नी मुसलमान भाई कब्र में उतारा जाता है, मोमिन मुसलमान कब्र में उतारा जाता है, अब भाई देखो वो बंदे के भाई अमाल अच्छे हैं, बंदे ने भाई बहुत सी भाई इबादत लाया है, बहुत सी नेकियां लाया है, फरिश्ते खुश हो जाते हैं, फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। हाँ भाई बहुत प्यारा बनता है, मोमिन मुसलमान बंदा है भाई, हाँ बख्शे जाते हैं भाई उसके गुनाह बख्शे जाते, अल्लाह ताला फरमाता है भाई माफ कर दो, भाई जो गुनाह है वो गुनाह को बख्श दो, माफ कर दो। अब जो वली अल्लाह को मानने वाला नहीं है, जो वली अल्लाह के दरबार में जाने वाला नहीं है, ऐसा बंदा भी बहुत इबादत किया करता है, बहुत इबादत किया करता है, बहुत नमाजें पढ़ता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है, हाँ कुरान शरीफ पढ़ा करता है, बहुत नेकिया करता है। ये बंदा भाई कब्र में डाला गया, ये बंदा कब्र में उतारा गया। अब देखो भाई वो बंदा भाई उतारा गया कब्र में, तो भाई देखो वो बंदा कह रहा है फरिश्तों से कि भाई हमने दुनिया में बहुत सी इबादत की, हमने कुरान शरीफ की तिलावत की, हाँ तो कुरान शरीफ कहाँ नजर आ रहा है उसे, हाँ कुरान शरीफ कहाँ नजर आ रहा है,
ऐसे बंदे को कुरान शरीफ नहीं पहचानता है। ऐसे बंदे को भाई देखो वो इबादत नहीं पहचानती है। जो वली अल्लाह होते दुनिया वाले जमाने वाले, यहाँ सुनो, जब कोई शान वाले वली अल्लाह होते हैं कुरान शरीफ की तिलावत वो किया करते वली अल्लाह, हाँ, तो कुरान शरीफ भाई देखो वो प्यारे के बारगाह में पहले सलाम करता है। भाई पहले सलाम करता है कुरान शरीफ। हाँ, वली अल्लाह भाई वो कुरान शरीफ जब सलाम करता है वली अल्लाह भाई उसके सलाम का जवाब देते हैं। तो यानी एक दूसरे पहचान रहे हैं, एक दूसरे भाई जान रहे हैं। हाँ, अब जो भाई वली अल्लाह के दरबार में नहीं आ रहा है भाई देखो वो बंदे को भाई कुरान शरीफ कहाँ सलाम पहुँचा रहा है, वो बंदे को कुरान शरीफ कहाँ सलाम कर रहा है। हाँ भाई वो कहाँ पहचानेगा। हाँ, देखो दुनिया के अंदर भाई एक दूसरे भाई रिश्तेदार होते हैं, पहचान होती है, जहाँ तक पहचान होती है तो वहाँ भाई देखो सलाम होता है एक दूसरे में। हाँ, पहचान होती है तो भाई देखो पहचानते एक दूसरे कि भाई ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं। हाँ, तो भाई इसी तरह का हिसाब है, वली अल्लाह का इसी तरह से हिसाब है। भाई देखो कुरान शरीफ जब हर वली अल्लाह पढ़ता है तो भाई जब भाई वो कुरान शरीफ को खोलता है तो कुरान शरीफ सलाम पहुंचाता है वली अल्लाह को। वो क्यों पहुंचाता है, दुनिया वाले वो कुरान शरीफ क्यों पहुंचाता है भाई वो भी बताते हैं, नूरानी सलामी के जरिए वो भी बताते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है अपने पाक किताब को, फरमाता है अल्लाह ताला कि ऐ मेरी प्यारी पाक किताब, ऐ मेरा प्यारा कुरान शरीफ, देख ले भाई अगर भाई हमारे प्यारे के सामने भाई आप रहेगा, हमारे प्यारे के सामने आप रहेगा जो हमारे करीब है, जो मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीब है। हाँ, यानी कि उनकी जो आल है, उनकी अहले बैत है, शहीद करबला है और उनकी आल है। हाँ भाई जो भाई हमारे प्यारे भाई आपको भाई सामने रखेंगे तो हमारे प्यारे को भाई आप भाई अदब से सलाम करना। अल्लाह ताला की वो पाक किताब अल्लाह का फरमान सुनती है, सुनेंगी क्यों नहीं सुनेंगी। दुनिया वाले जमाने वाले ये तो जानते हैं ना आप लोग कि भाई देखो हर कोई चीज भाई कोई बंदा बनाता है, जो भी चीज बनाता है भाई देखो वो चीज भाई उसे पहचानती है, उसे पहचानती कि भाई हमें किसने बनाया है। अल्लाह ताला ने भाई कुरान शरीफ को बनाया है, अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से भाई कुरान शरीफ को लिखा है। तो अल्लाह ताला के फरमान को वो कुरान शरीफ भाई सुनता है, अल्लाह ताला के फरमान को सुनता है, खुश हो जाता है। कुरान शरीफ अल्लाह ताला को जवाब देता है, या अल्लाह मेरे मालिक मौला जरूर भाई ये कुरान शरीफ को बनाने वाले आप ही है, अल्लाह ताला आप ही है। भाई देखो आप भाई हमें जो हुक्म देंगे भाई हम वैसा ही करेंगे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ को फरमाया कि मेरे प्यारे को भाई देखो मेरे प्यारे के सामने आप भाई जरूर सलाम करेंगे। हाँ, जरूर सलाम पहुंचाएंगे और मेरे प्यारे को पहचानेंगे। कुरान शरीफ खुश हो जाता है, कुरान शरीफ फरमाता है जरूर। तो भाई देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारे नाना जान है, हाँ भाई वो भी यही फरमाते हैं, यानी कि अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक है। वो भी तो कह रहे रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं कि जिसने भाई हमारे आल से मोहब्बत की भाई देखो उससे हमने मोहब्बत की, जिसने भाई हमारे आल को खुश रखा उससे हम खुश हो जाएंगे, जिसने भाई हमारे आल को नाराज किया उससे हम नाराज हो जाएंगे।
तो प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो फरमा रहे, यही तो कह रहे दुनिया वाले को। हाँ हाँ कि भाई हमारे आहिल बेत से मोहब्बत रखो, हमारे आहिल बेत को खुश रखो, तो भाई हम खुश हो जाएंगे आपसे, हम खुश हो जाएंगे। हमारी हर आल को भाई खुश रखो तो हम खुश हो जाएंगे। तो भाई उनकी आल आप लोगों से क्या चाहती है? प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल आप लोगों से क्या चाहती है? दुनिया वाले, जमाने वाले यही चाहती है जो अल्लाह ताला चाहता है। आप लोगों से अल्लाह ताला क्या चाह रहा है? यही तो कह रहा है आप लोगों का अल्लाह ताला कि मेरे प्यारे बंदे इबादत किया करो, और मेरे प्यारे बंदे इबादत किया करो। तो भाई देखो प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल आप लोगों से यही तो चाह रही है। दुनिया वाले, जमाने वाले, यहाँ गौर करो, साबिर पाक के फरमान पे गौर करो। तो भाई आहिल बेत शहीद करबला आप लोगों से यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बंदे इबादत किया करो, ओ मेरे प्यारे बंदे इबादत किया करो। देखो हम तो भाई इबादत के करते करते भाई खत्म हो गए, हम तो अल्लाह की इबादत करते करते शहीद हो गए। आप लोग भी इबादत किया करो। भाई आप लोगों से कहाँ कुछ मांग रहे दुनिया वाले? प्यारे आहिल बेत, हमारे घराने वाले, हमारे खानदान वाले आप लोगों से कहाँ कुछ मांग रहे हैं? भाई वो तो वही कह रहे हैं जो अल्लाह ताला आप लोगों से कह रहा है। हाँ हाँ क्या भाई मेरे प्यारे बंदे, मेरे प्यारे उम्मती इबादत किया करो, इबादत किया करो। भाई देखो हम आपके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला आप लोगों से क्या चाह रहा है दुनिया वाले? अल्लाह ताला को जानने वाले, अल्लाह ताला को पहचानने वाले, अल्लाह ताला के पास पहुंचने वाले, अल्लाह ताला आप लोगों को क्या कह रहा है वो सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला का फरमान यही है कि भाई कुरान शरीफ पढ़ा करो मेरे बंदे, कुरान शरीफ पढ़ा करो मेरे बंदे। हाँ भाई कुरान शरीफ की तिलावत किया करो मेरे बंदे। तो भाई मेरे हमारे प्यारे नाना जा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल क्या चाहती है आपसे? भाई हमारे घराने वाले, हमारे खानदान वाले आप लोगों से क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बंदे हमने भाई कुरान शरीफ की तिलावत बहुत की है, आप भी भाई कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, आप भी कुरान शरीफ पढ़ा करो। क्या मांग रहे हैं आपसे? भाई क्या मांग रहे हैं दुनिया वाले आपसे? कुछ नहीं मांग रहे हैं। भाई देखो जिनके पास सब कुछ है वो किसी से कभी कुछ नहीं मांगता है, जिनके पास दोनों जहान के खजाने हैं वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है। भाई यही कहते हैं, यही चाहते हैं आप लोगों से, वो भी कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। कुरान शरीफ हमें पहचान रहा है मेरे बंदे, हाँ कुरान शरीफ हमें पहचान रहा है मेरे बंदे। भाई देखो हमें मानो, हाँ हमें जानो, हमारे फरमान को सुनो, हमारा हुक्म पूरा करो। कुरान शरीफ हमें पहचान रहा है, कुरान शरीफ भाई रात और दिन, भाई 300 दिन हमारी बारगाह में सलाम पहुंचा रहा है मेरे बंदे, हमें पहचान रहा है। तो हमारे हुक्म से ही भाई कुरान शरीफ भाई चलता है। यही कह रहे हैं भाई हमारे खानदान वाले, दुनिया वाले, जमाने वाले आप लोगों से यही कह रहे कुरान शरीफ पढ़ा करो। भाई वो कुरान शरीफ हमारे हुक्म सुनता है, हमारा फरमान सुनता है। तो भाई देखो आहिल बेत का फरमान सुनता है, कुरान शरीफ भाई शहीद करबला का फरमान सुनता है। हाँ तो उन्हीं के हुक्म से भाई कुरान शरीफ भाई चलता है, उन्हीं के हुक्म से भाई देखा जो आहिल बेत को खुश करेगा, शहीद करबला को खुश करेगा, वो खुश हो जाएंगे, कुरान शरीफ से फरमाएंगे भाई देखो ऐसे बंदे को भाई आप कब्र में भाई देखो पहचान लेंगे, कब्र में पहचान लेंगे। हाँ तो यहाँ नजर डालो कुरान शरीफ, और भाई देखो हमारे प्यारे दादा जान यानी कि भाई गौसुल आजम दस्तगीर,
भाई देखो, यानी कि भाई हिंदल वली गरीब नवाज। हाँ, जो कहा ना अभी कि भाई गौसुल आजम दस्तगीर ने बेड़ा पार कर दिया है मोमिन मुसलमान का। हिंदल वली गरीब नवाज ने मोमिन मुसलमान का बेड़ा पार कर दिया है। तो वही आ रहे हैं दुनिया वाले जमाने वाले, वही लाइन पर आ रहे हैं साबिर पा। हाँ, कुरान शरीफ गौसुल आजम दस्तगीर को पहचानता है। कुरान शरीफ हिंदल वली गरीब नवाज को पहचानता है। कुरान शरीफ भाई अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म सुनता है। भाई कुरान शरीफ भाई हिंदल वली गरीब नवाज का हुक्म सुनता है। हाँ, तो भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर फरमा रहे हैं। हाँ, कुरान शरीफ से फरमा रहे हैं भाई, जिसने हमारे खानदान वाले, जिसने भाई हमारे घराने वाले यानी कि अहिल बैत को, भाई हमारे खानदान वाले, हमारे भाई घर वाले यानी कि शहीद करबला को खुश रखा, आप उसी को पहचानेंगे। कुरान शरीफ हमारी सुन्नी मोमिन मुसलमान को ही पहचानेंगे आप, और किसी को नहीं पहचानेंगे। हाँ, कैसे कह रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी कुरान शरीफ को हुक्म कैसे दे रहे हैं वो भी बता रहे साबिर पाक। जब भाई कुरान शरीफ भाई अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में सलाम पहुंचाते हैं, भाई अब्दुल कादिर जिलानी सलाम का जवाब देते कुरान शरीफ का, और भाई कुरान शरीफ को मुस्कुरा कर भाई देखा करते और फरमाते हैं मेरे प्यारे कुरान शरीफ, आप हमें पहचान रहे हैं, आप हमें जान रहे हैं, हमारी बारगाह में सलाम पहुंचा रहे, हम वलियों के सरदार बन के आए हैं। अब देखो हम आपको यही भाई हुक्म दे रहे हैं, जिसने हमारे खानदान वाले, जिसने हमारे घर वाले को भाई खुश किया कब्र के अंदर, आप उसे पहचानेंगे। अब जिसने भाई हमारे खानदान वाले, हमारे घर वाले को नाराज किया कब्र में, भाई आप उसे नहीं पहचानेंगे, चाहे भाई वो जिंदगी भर आपकी तिलावत करते ही क्यों नहीं बैठे। कुरान शरीफ फरमाते भाई देखो वलियों के सरदार, भाई आपका हुक्म भाई हम कयामत तक सुनेंगे, आपका फरमान हम कयामत तक सुनेंगे। हाँ, हिंदल वली और गरीब नवाज की बारगाह में कुरान शरीफ भाई सलाम पहुंचाता है। जब भाई प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज की नजर कुरान शरीफ पर पड़ती है, मोइनुद्दीन हसन कुरान शरीफ को देखा करते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, कुरान शरीफ भाई सलाम पहुंचाता है मोइनुद्दीन हसन को, भाई वो जवाब देते प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज। अब मुस्कुरा के फरमा रहे ऐ मेरे प्यारी, भाई देखो पाक किताब, भाई देखो आप भाई हिंदल वली गरीब नवाज का भाई फरमान को सुनेंगे। हाँ, और भाई देखो अच्छी तरह से भाई हमारे फरमान को भाई निभाएंगे, पूरा करेंगे। हाँ, अब गरीब नवाज फरमा रहे हैं कि देख ले मेरी प्यारी कुरान शरीफ की किताब, आप भाई देखो जिसने भाई हमारे खानदान वाले, हमारे घराने वाले को खुश किया, ये गरीब नवाज के हुक्म से आप उसे पहचानेंगे। हाँ, जिसने भाई हमारे खानदान वाले, हमारे घराने वाले को नाराज किया, ये गरीब नवाज के हुक्म से भाई आप उसे नहीं पहचानेंगे, चाहे कि भाई जिंदगी भर वो कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ते ही क्यों नहीं रहे। हाँ, कुरान शरीफ फरमाता है ठीक है मेरे प्यारे मोइनुद्दीन, हम आपको पहचान रहे, आप हमें पहचान रहे, और भाई देखो हम आप ही का फरमान सुनेंगे और किसी का फरमान नहीं सुनेंगे। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, कुरान शरीफ जिसे देखता है उसी का फरमान सुनता है। हाँ, और भाई किसी को नहीं देखेंगे, किसी का फरमान नहीं सुनेंगे। मुस्कुराते हैं गरीब नवाज से। इस तरह भाई प्यारे मोइनुद्दीन हसन ने भाई मोमिन मुसलमान का बेड़ा पार कर दिया है। गरीब नवाज हिंदल वली गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई देखा मोमिन मुसलमान का बेड़ा पार कर दिया। जब मोमिन मुसलमान, हाँ, मोमिन मुसलमान भाई कब्र में डाला जाता है, उतारा जाता है, भाई कहने वाले कहते हैं कि इबादत करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ भाई बख्शिश कराएगा कब्र के अंदर। हाँ, तो सही कहते, मोमिन मुसलमान भाई देखो कब्र में डाले जाते हैं, भाई वो कुरान शरीफ पहचानता है। हाँ, कि भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर का बंदा है।
یہ سنی مسلمان ہے، غوث اعظم دستگیر کا ماننے والا بندہ ہے۔ ہاں ہاں، وہ قرآن شریف خوش ہو جاتا ہے، وہ قرآن شریف پہچانتا ہے بھائی، یہ ہندل والے غریب نواز کا بندہ ہے، یہ پیارے معین الدین حسن کا بندہ ہے بھائی۔ دیکھو غریب نواز کو ماننے والا ہے، غریب نواز کو چاہنے والا ہے۔ ہاں ہاں بھائی، غریب نواز نے بھائی ہم سے فرمایا ہے کہ بھائی آپ مومن مسلمان کو پہچانیں گے۔ ہاں ہاں بھائی، ہمارے خاطر ہندل والے غریب نواز نے فرمایا ہے ہمارے خاطر آپ مومن مسلمان کو پہچانیں گے۔ ہاں ہاں، غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ہے ہمارے خاطر آپ مومن مسلمان کو پہچانیں گے۔ تو بھائی دیکھا، ایسا بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو پہچانتا ہے بھائی، وہ قرآن شریف بھائی مومن مسلمان کی بخشش کرتا ہے۔ تو وہی تو کہہ رہے بھائی صابر پاک، بھائی دیکھا مومن مسلمان کا بیڑا پار ہو گیا ہے دست بابا جان کے کرم سے آپ لوگوں کے۔ صابر پاک جو حاضر ہے تو صاف صاف کہیں گے، ہاں ہاں صاف صاف کہیں گے۔ آپ دیکھو بھائی، جو بھائی عبادت کیا کرتا ہے، بہت عبادت کر رہے ہیں، کرنے والے عبادت کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو بھائی ولی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، ہم تو بھائی ولی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، درگاہ پہ نہیں جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ولی اللہ کو بھائی دیکھو نہیں جاننے والے، نہیں پہچاننے والے، بھائی دیکھو یہ آ گئے ہیں صابر پاک، نورانی سلامی میں آ گئے ہیں صابر پاک، آپ کا جواب دینے آئے ہیں۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ہاں بھائی ہماری عبادت کیا کرو، میرے پیارے بندے ہماری عبادت کیا کرو۔ ہاں ہاں، اب دیکھو بھائی وہ عبادت کا ثواب بھائی دیکھو کیسے ملے گا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو عبادت کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو بتا رہے صابر پاک بھائی، اللہ تعالیٰ کے وہ پاک فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ہی ذریعے آپ لوگوں کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بھائی دیکھا ہمارے فرشتے جتنے ہیں، ہمارے سارے کے سارے فرشتے بھائی ہم نے کسے دیے ہیں؟ ہاں، جو دونوں جہان کے خزانے دے دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے کائنات کے بھائی مالک مختار بنا دیا بھائی، ان کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی اپنے سارے کے سارے فرشتے بھائی اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں۔ اب بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میرے پیارے فرشتے بھائی سارے فرشتے بھائی ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے سارے فرشتے کو، اب بھائی یہ سارے فرشتے بھائی ہمارے حکم سے ہی چلیں گے، یہ سارے ہمارے فرشتے ہمارے حکم سے ہی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی جو دے دیا سب کچھ اس کے محبوب کے ہاتھ میں۔ ہاں ہاں بھائی، وہ پیارے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر بہت مسکراتے ہیں، بہت مسکراتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیونکہ بھائی ہر روز بھائی وہ سارے کے سارے فرشتے مدینہ منور میں رہتے ہیں، بھائی ان کا آنا جانا ہے، سب سے زیادہ فرشتوں کا کہاں آنا جانا ہے؟ مدینہ منور میں آنا جانا ہے بھائی، جو فرشتوں کے مالک ہے اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے مالک بنا دیا ہے اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بھائی وہ فرشتے بھائی مالک کا ہی حکم مانیں گے، دنیا والے زمانے والے وہ فرشتے بھائی ان کے اپنے مالک کا ہی کہنا سنیں گے اور کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور کسی کا بھائی کہنا نہیں سنیں گے۔ سن لو نورانی سلامی کے ذریعے بھائی وہ فرشتے سے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے فرشتے آپ بھائی ہمارے آل کے ہی حکم سے چلیں گے۔
हाँ हाँ, आप भाई हमारे हाल के हुक्म से ही चलेंगे। हाँ हाँ, भाई देखो हमारे हाल को, मेरे प्यारे फरिश्ते, हमारे हाल को भाई जिसने खुश किया उससे खुश भाई हम हो जाएंगे, जिसने नाराज किया उससे नाराज हम हो जाएंगे। सारे के सारे फरिश्ते भाई देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल के पास रहते हैं। हाँ हाँ, उनके पास रहते हैं। हाँ हाँ, अब देखो भाई ये बता रहे हैं गौसुल आजम दस्तगीर की शान। हाँ हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से चलते हैं। ठीक है भाई, उनके प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अपने सारे फरिश्ते भाई उनके लाल को दे दिए हैं। हर जगह भाई उनके फरिश्ते हैं, उनके आल के साथ है, उनके लाल के साथ है। अब देखो अब्दुल कादिर जिलानी को दे दिए हैं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते फरिश्ते से कि ए मेरे प्यारे फरिश्ते, आप भाई हमारे हुक्म से ही चलेंगे, आप हमारे हुक्म से ही चलेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं हाँ हाँ भाई देखो आप हमारा ही कहना सुनेंगे। फरिश्ते फरमाते जरूर। हाँ हाँ भाई, रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपकी बारगाह में पहुंचाया है, आपके पास पहुंचाया है, हमें आपका ही हुक्म मानना है। अब भाई देखो यहाँ हिंदल वाले गरीब नवाज के पास भाई उनके प्यारे नाना जान ने फरिश्ते पहुंचाए हैं। हाँ हाँ, यही फरमाया है ऐ मेरे प्यारे फरिश्ते, भाई आप भाई हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे शहजादे हिंदल वली गरीब नवाज के पास रहेंगे और भाई उनका हुक्म सुनेंगे। हिंदल वली गरीब नवाज फरमाते हैं अरे मेरे प्यारे फरिश्ते, हाँ हाँ, अरे मेरे प्यारे फरिश्ते, भाई आपको भाई हमारा हुक्म सुनना होगा, आपको हमारा कहना सुनना होगा। वो फरिश्ते भाई खुश होकर फरमाते जरूर। हाँ हाँ जरूर मेरे प्यारे मोइनुद्दीन हसन हिंदल वली गरीब नवाज, जरूर आप जैसा बोलेंगे, जैसा कहेंगे ये आपके फरिश्ते प्यारे वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ, तो वो सारे के सारे फरिश्ते दुनिया वाले भाई देखो अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई अपने सारे आल को दे दिया है, अपने सारे लाल को दे दिया है। हाँ हाँ, तो दुनिया में कहाँ है फरिश्ते, जमाने में कहाँ फरिश्ते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह ताला को ढूंढने वाले, अल्लाह ताला तक पहुँचने वाले भाई फरिश्ते कहाँ है। यहाँ तो सारे फरिश्ते भाई बढ़ गए हैं, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दिया है सारे फरिश्ते को अपने घराने वाले, अपने खानदान वाले की बारगाह में। तो भाई अल्लाह ताला की बारगाह में देखो वो फरिश्ते ही वसीला है, ये फरिश्ता ही वसीला है मोमिन मुसलमान का। गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं ए मेरे प्यारे फरिश्ते, हाँ हाँ, जब भाई हमारा कोई मोमिन मुसलमान बंदा है, हमारा मानने वाला बंदा है, हमारा चाहने वाला बंदा है, हमारे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला बंदा है, हमारे अहल बैत का चाहने वाला है, शहीद करबला वाले का चाहने वाला है, ऐसा बंदा इबादत करेगा मेरे फरिश्ते प्यारे फरिश्ते, हमारे ऐसे प्यारे बंदे इबादत करेगा तो भाई देखो तू उसकी हर इबादत को देखेगा, तू उसकी हर इबादत को देखेगा। आहा, अब भाई वो मर कर कब्र में डाला गया, वो फरिश्ता गवाही देगा, फरिश्ता गवाही देगा। आहा, अल्लाह ताला की बारगाह में। हाँ हाँ, वो फरिश्ता फरमाएगा कि भाई इसने जो इबादत की थी हमने देखा है, इसने जो इबादत की थी हमने देखा है, हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, तब जाके भाई उसकी इबादत कब्र में काम आएगी। हिंदल वाले गरीब नवाज भी यही कहते हैं ऐ मेरे प्यारे फरिश्ते, कोई हमारा चाहने वाला बंदा, कोई हमारे प्यारे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
सच्चा आशिक, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक। भाई हमारे सारे खानदान वाले, सारे घराने वाले यानी के अहले बैत शहीद करबला, उनका सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना यानी कि मोमिन मुसलमान, सच्चा मोमिन मुसलमान भाई इबादत करेगा तो आप भाई उसकी इबादत को भाई खाली नहीं जाने देंगे। आप उसकी इबादत को याद रखेंगे कि भाई हमारे ये बंदे ने कितनी इबादत की है, कितनी इबादत की है। आप भाई एक एक इबादत भाई उसकी भाई अल्लाह के सामने लाकर रखेंगे, अल्लाह के सामने ला कर रखेंगे और भाई देखो उसकी बख्शिश कराएंगे आप फरिश्ते। तो फरिश्ते फरमाते हम ऐसा ही करेंगे मेरे प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज, हम ऐसा ही करेंगे। अब भाई जिसकी इबादत भाई देखो फरिश्ते नहीं देख रहे हैं, जिसकी इबादत भाई फरिश्ते नहीं देख रहे, उसकी इबादत कहाँ पहुँच रही है? अल्लाह ताला की बारगाह में। जान रहे जानने वाले कि भाई फरिश्ते ही भाई अल्लाह ताला की बारगाह में आते हैं जाते हैं, फरिश्ते ही आते हैं जाते हैं। मगर दुनिया में भाई देखो हर फरिश्ता भाई देखो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आल के साथ है। तो फिर आप लोगों की इबादत कौन पहुंचाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में? आप लोगों की इबादत कौन पहुंचाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में? भाई आप लोगों की इबादत तो यूं ही रखी रहेंगी धरी के धरी, हाँ भाई यूं ही रखी रहेंगी धरी के धरी। यही तो कह रहे भाई साबिर पा, हाँ भाई वो साबिर पा देखा करते हर बंदे के कब्र के अंदर। जब कोई सुन्नी मोमिन मुसलमान भाई कब्र में डाला जाता है भाई उसकी गवाही देने फरिश्ते आया करते हैं, गौसुल आजम दस्तगीर के हुक्म से आया करते, हिंदल वली गरीब नवाज के हुक्म से आया करते। अब भाई देखो जो गौसुल आजम दस्तगीर से दूर है, जो हिंदल वली गरीब नवाज से दूर है, ऐसे बंदा कब्र में डाला जाता है। हाँ ऐसा बंदा कब्र में डाला जाता है तो भाई देखो बहुत इबादत की, हाँ बहुत नमाज पढ़ी, बहुत इबादत की। एक तरफ तो भाई कुरान शरीफ नहीं पहचान रहा है, अब दूसरी तरफ इबादत की। भाई नमाज जो इतनी सारी पढ़ी भाई वो सारी की सारी इबादत कहाँ गई? वो सारी की सारी इबादत कहाँ गई आपकी? हाँ कौन गवाही देगा? फरिश्ता नहीं है, गवाही देने वाला फरिश्ता नहीं है, ना तो कुरान शरीफ पहचान रहा है, ना तो भाई फरिश्ता है आपकी इबादत तो भाई गवाही देने वाला। हाँ अब क्या होएगा? ऐसे बंदे का क्या होएगा? हाँ अब वो भी बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है भाई हम किसी बंदे की इबादत को जाया नहीं जाने देते हैं, हम किसी बंदे की नेकी को जाया नहीं जाने देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने फरिश्ते से फरमाता है क्या ऐ मेरे प्यारे फरिश्ते, ऐ मेरे प्यारे फरिश्ते भाई ये कब्र में उतारा गया है, ये कब्र में डाला गया है, मगर इबादत बहुत की थी मेरे प्यारे फरिश्ते, इबादत बहुत करता था, कुरान शरीफ की तिलावत बहुत किया करता था, हमें ये अंदाज बहुत पसंद आता था, हमें इसका ये अंदाज दुनिया में बहुत पसंद आता था। क्योंकि जब ये इबादत किया करता था अब इसकी इबादत को देख के भाई इसकी आल इबादत किया करती थी, भाई इसकी सारी के सारी नस्ल इबादत किया करती थी। जब ये कुरान शरीफ की तिलावत किया करता था तो भाई ये अपने आल को कुरान शरीफ सिखाया करता था, कुरान शरीफ सिखाया करता था कि भाई हम नहीं रहेंगे, ये हमारे आंखों के सामने आप कुरान शरीफ सीख ले पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो इसी को देखकर भाई कुरान शरीफ भाई इसकी आल भाई पढ़ा करती थी। हमें भाई ये बंदे का अंदाज बहुत पसंद आया, फरिश्ते से फरमाता ना तो भाई हम इसकी इबादत जाया जाने देंगे भाई आज मरने के बाद, ना तो भाई इसने जो जितने भाई अच्छे अमाल किए हैं, नेकी की है, कुरान शरीफ की तिलावत की, हम भाई नहीं जाया जाने देंगे फरिश्ते। अल्लाह ताला कहाँ पहुँचा रहा है फरिश्ते को? दुनिया वाले जमाने वाले सुनो,
اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھائی اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے۔ فرشتے آئے، سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے سچے رسول، ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہم آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں پہنچایا ہے۔ ہاں اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ فرشتے کو بھائی ہماری بارگاہ میں کیوں پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پہنچایا یہ فرشتے کو۔ جب وہ فرشتہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ فرمایا ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے، زمانے والے یہاں غور کرو، پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے، بہت مسکراتے۔ وہ کیوں مسکراتے، وہ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے خوش ہوتے، ارے بندے تو دنیا میں ہم سے دور تھا، مگر مرنے کے بعد بھائی ہماری ضرورت تجھے پڑی گئی۔ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت مسکراتے بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں، ہاں پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے، ارے بندے تو دنیا میں ہمارے حال سے دور تھا، مگر مرنے کے بعد ہماری حال کی ضرورت تجھے پڑی گئی۔ بہت خوش ہوتے بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوش ہوتے، فرماتے فرشتے سے کہ اے میرے پیارے فرشتے، جا وہ بندے کے قبر میں چلا جا، وہ بندے کے قبر میں چلے جا۔ بھائی دیکھ، تجھے تو قرآن شریف نہیں پہچان رہا ہے، ہاں تجھے تو قرآن شریف نہیں پہچان رہا ہے، ہاں تجھے عبادت نہیں بھائی کام آ رہی تیری۔ اب بھائی دیکھو، عبد القادر جیلانی، ہمارے پیارے شہزادے، ہمارے پیارے دلارے، ہمارے پیارے لال غوث العظم دستگیر، ہاں غوث العظم دستگیر، بھائی دیکھو بھائی آپ کو بھائی پہنچانے والے عبد القادر جیلانی ہے، جا کر اس بندے کے قبر میں کہیں۔ وہ فرشتہ آتا ہے، بندے کے قبر میں آتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، آپ کو بھائی آپ نے بھائی دنیا میں بھائی جتنی عبادت کی، آپ کی عبادت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے بھائی قرآن شریف بھائی جتنا پڑھا، بھائی آپ کو قرآن شریف نہیں پہچان رہا ہے۔ بھائی آپ کی ساری کی ساری بھائی دیکھو وہ عبادت بھائی کہاں ہے، قرآن شریف نہیں پہچان رہا ہے۔ بھائی وہ عبادت تو بھائی غوث العظم دستگیر کے حکم سے بھائی آپ کی ساری عبادت بھائی دیکھو وہ فرشتے کے پاس ہے، عبد القادر جیلانی کے پاس ہے آپ کی ساری عبادت۔ ہاں جب بھائی وہ فرشتہ گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں غوث العظم دستگیر کے حکم سے، تبھی اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو آپ کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اب جو یہ قرآن شریف نہیں پہچان رہا ہے بندے، ہاں قبر کے اندر قرآن شریف تجھے نہیں پہچان رہا ہے، پتا ہے جب غوث العظم دستگیر قرآن شریف کو بھائی دیکھا کرتے ہیں تو قرآن شریف بھائی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں سلام پہنچاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی سلام کا جواب دیتے قرآن شریف کو اور فرماتے ہیں کہ آپ کو ہمارا حکم ماننا ہوگا۔ بھائی ہمارے جو ماننے والے بندے، ہمارے چاہنے والے بندے ہیں، آپ اسے بھائی پہچان لیں گے، قبر کے اندر اتارے جائیں گے، ہمارے سنی مسلمان کا آپ اسے پہچانیں گے، ہم سے یہ وعدہ کر لے قرآن شریف۔ قرآن شریف نے بھائی عبد القادر جیلانی سے وعدہ کیا ہے، ہاں تو بھائی دیکھو عبد القادر جیلانی سے وعدہ کیا ہے قرآن شریف نے، تو بھائی اس لیے آپ کو بھائی قرآن شریف نہیں پہچان رہا ہے۔ اب بھائی قبر کے اندر بھائی آپ کا ساتھ بھائی کوئی نہیں ہے، قبر کے اندر کوئی نہیں ہے، بھائی اگر آپ بھائی قبر کے اندر معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی عبادت خالی نہیں جانے دیں گا، کوئی نیکی خالی نہیں جانے دیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن شریف کی تلاوت کو خالی نہیں جانے دیں گا۔ اگر آپ بھائی قبر کے اندر بھائی دیکھو
माफी मांग ले गलती को। हाँ हाँ हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर जब माफ कर देंगे भाई, वो कुरान शरीफ को भाई हुक्म देंगे कि ए मेरे प्यारे कुरान शरीफ, चल बंदे को पहचान कब्र के अंदर। तो भाई वो कुरान शरीफ आपको पहचानेगा बंदे। अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्ते से हुक्म देंगे कि ए मेरे प्यारे फरिश्ते, जा अल्लाह ताला की बारगाह में जा, आपका हमारा हुक्म है, और इसने भाई जितनी नेकी की, जितना इबादत की, आप जाके गवाही दे, तब जाके आपकी बख्शिश होगी प्यारे बंदे। आखिरकार भाई बंदा भाई देखो कब्र के अंदर भाई देखो हार मान ही जाएगा। दुनिया में भाई रहने वाला बंदा शान और शौकत से हार मान जाएगा भाई, कहेगा कि भाई हम माफी मांग रहे हैं भाई अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में। अब्दुल कादिर जिलानी हमें माफ कर दो, दुनिया में भाई हमने आपको नहीं पहचाना था, दुनिया में भाई हमने आपको नहीं जाना था। तो देखो मेरे बोले बंदे, मेरे भटके हुए बंदे, देखो अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज कितना पसंद है। हाँ हाँ भाई आप तो भाई हर रोज भाई देखो वली अल्लाह से दूर है, आप भाई इतनी बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी ही आपके भाई काम आ रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी ही भाई आपकी बख्शिश करा रहे हैं। हिंदल वली गरीब नवाज का भी यही कहना है, दुनिया वाले जमाने वाले। हाँ हिंदल वली गरीब नवाज भी इसी तरह भाई बंदे की बख्शिश कराते हैं। हाँ तो भाई सही कहते कहने वाले भी, हाँ सही कहते कहने वाले भी भाई वली अल्लाह के दरबार में क्या रखा है। वली अल्लाह को हम नहीं मानते, वली अल्लाह को हम नहीं जानते भाई, हम तो भाई अल्लाह से मांगते हैं, हम तो अल्लाह तक जानना चाहते हैं, मगर आखिरी वक्त आप लोगों को पता चलेगा, कब्र में उतारे जाएंगे जब पता चलेगा आप लोगों को कि वली अल्लाह क्या है, वली अल्लाह की शान क्या है। दुनिया वाले जमाने वाले उन्हीं के जरिए आप बख्शे जाएंगे, कब्र के अंदर भाई उन्हीं की जरूरत रहेगी, वली अल्लाह की ही जरूरत रहेगी। इसीलिए तो भाई देखो हर वली अल्लाह का रोजा मुबारक नजर आता है दुनिया में, हर वली अल्लाह का दरबार दुनिया में नजर आता है, क्योंकि भाई यही तो है रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, उनकी आल, उनकी भाई देखो लाल यही तो है। हाँ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अल्लाह ताला की बारगाह में कि या अल्लाह मेरे मालिक के मौला, भाई देखो हमारी आल में से भाई, हमारे लाल में से भाई चाहे जितनी भी भाई जितने की भी विलायत होते चले जाए, वो सब के सब भाई देखो शान वाले रहेंगे, बहुत अजमत वाले रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे शहजादे बहुत शान वाले रहेंगे, बहुत अजमत वाले रहेंगे, ना तो भाई वो दुनिया में कभी मिटेंगे, ना तो भाई कयामत के दिन भी कभी मिटेंगे। तो देख लो उनका रोजा मुबारक बता रहा है कि भाई देखो वो आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जो जिंदा रहता है भाई वही तो साथ देता है, हाँ जो सलामत रहता है वही तो साथ देता है, जो जिंदा रहता है वही तो बख्शिश कराता है, जो सलामत रहता है वही तो बख्शिश कराता है। हाँ भाई देखो समझो, नूरानी सलामी को जानो, नूरानी सलामी को पहचानो, और भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर के करीब हो जाओ, हिंदल वली गरीब नवाज के करीब हो जाओ। ये साबिर पाक तो भाई देखो हमेशा हमेशा गौसुल आजम दस्तगीर के ही थे और हिंदल वली गरीब नवाज के ही थे, और भाई कयामत तक उन्हीं के साथ रहेंगे। माशाल्लाह बहुत खूब, दो किसी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पंचतन पाक को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे रसूल बाबा जान को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
پیارے دادی اماں، پیارے راستی اماں، پیارے رام اماں اور پیارے ماموں حمزہ جلالی کو ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، پیارے دادا جان اور سیدری میرا داتار کو ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بابا جان آج حاضر ہے ان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بابا جان کی بیٹی ہماری امی پیاری ہماری امی جان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں کلیر کے راجا حاضر ہے، کلیر کے مہاراجا حاضر ہے نورانی سلامی میں۔ ہاں، یعنی کہ بھائی مخدوم علاء الدین حاضر ہے، صابر پاک حاضر ہے، ہندل ولی غریب نواز فرماتے ہیں، پیارے معین الدین حسن فرماتے ہیں، بھائی آپ بھائی ہمارے پیارے لال، ہمارے پیارے شہزادے، بھائی آپ کلیر کے راجا ہی نہیں ہیں بلکہ اجمیر شریف کے بھی راجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے معین الدین حسن فرماتے ہیں، او میرے پیارے لال، میرے پیارے شہزادے، آپ بھائی کلیر کے ہی شہنشاہ نہیں ہے بلکہ اجمیر شریف کے بھی شہنشاہ ہے۔ وہ پیارے بھائی غوث العظم دستگیر دادا جان، صابر پاک کے دادا جان، یہ صابر پاک کے پوتے حاضر ہے نورانی سلامی میں، غوث العظم دستگیر کے پوتے حاضر ہے، عبد القادر جیلانی کے پوتے حاضر ہے۔ تو پیارے دادا جان غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں، میرے پیارے لال، میرے پیارے شہزادے، بھائی آپ بھائی کلیر کے راجا نہیں بلکہ بھائی آپ بھائی بغداد شریف کے بھی راجا ہے۔ بھائی پیارے دادا جان فرماتے ہیں، میرے پیارے لال، میرے پیارے شہزادے، بھائی آپ کلیر کے بھائی شہنشاہ کیا، آپ بغداد کے بھی شہنشاہ ہے۔ بھائی دیکھو بھائی وہ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے پیارے دلارے، میرے پیارے لال صابر پاک، آپ بھائی کلیر کے ہی راجا کیا بلکہ بھائی مدینہ منور کے بھی راجا ہے۔ بھائی کلیر کے ہی بھائی شہنشاہ کیا بلکہ بھائی مدینہ منور کے بھی شہنشاہ ہے۔ ہمارے پیارے ماموں جان، ہمارے پیارے ماموں جان جو ہر کوئی جانتا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے، بھائی یہ صابر پاک کے ماموں جان کون ہے؟ بھائی وہ بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر ہے بھائی۔ تو ہمارے پیارے ماموں جان فرماتے ہیں، بھائی آپ کلیر کے ہی راجا کیا، میرے پیارے لال، میرے پیارے دلارے، صابر پاک، بھائی بلکہ بھائی ہمارے پاکستان کے بھی آپ راجا ہے۔
सारे भाई हिंदुस्तान के राजा है ये कलियर के भाई शहंशाह। हाँ, हिंदल वली गरीब नवाज ने फरमाया है, मेरे प्यारे शहजादे, मेरे प्यारे लाल, आप भाई सारे हिंदुस्तान के राजा है। आप भाई सारे हिंदुस्तान के शहंशाह है। तभी तो भाई दुनिया के कोने कोने से भाई आ रहे हैं कलियर शरीफ में। तभी तो भाई हर जगह से भाई आ रहे हैं कलियर शरीफ में। भाई ये कलियर के राजा के पास आ रहे हैं। भाई देखो मिलने आ रहे हैं, हिंदल वाले गरीब नवाज पहुंचा रहे हैं। प्यारे दादा जान गौसुल आजम दस्तगीर पहुंचा रहे हैं। प्यारे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा रहे हैं। हर कोई को पहुंचा रहे हैं साबिर पाक से मिलने। तो भाई आज नूरानी सलामी में साबिर पाक हाजिर है। हाँ, हिंदल वली गरीब नवाज की गली में हाजिर है। प्यारे मोइनुद्दीन हसन की नगरी में हाजिर है। प्यारे भाई ख्वाजा खातगा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली के भाई रोज़े मुबारक पर हाजिर है। उनके प्यारे लाल, उनके प्यारे दुलार साबिर पाक हाजिर है। तो दुनिया वाले जमाने वाले किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले तो सुनाते हैं। हाँ, तो भाई ये बताना चाहते हैं नूरानी सलामी के जरिए भाई सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो कुछ दिन पहले नूरानी सलामी में भाई सैयद उम्मुल वरा के पास उनके प्यारे भाईजान हाजिर हुए थे। भाई कौन से भाईजान है बताते हैं। भाई वो भाईजान ख्वाजा फखरुद्दीन है। ख्वाजा फखरुद्दीन हाजिर हुए थे। ख्वाजा फखरुद्दीन फरमा रहे थे, नूरानी सलामी के जरिए फरमा रहे थे, मोबाइल के जरिए सुना रहे थे हर कोई को कि भाई देखो हम भाई अगर भाई किसी ने नहीं माना, किसी ने नहीं जाना, तो भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर के साथ मिलकर भाई ये ख्वाजा फखरुद्दीन भाई अपना जलाल दिखाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी के साथ मिलकर भाई ये ख्वाजा फखरुद्दीन अपना जलाल दिखाएंगे। तो हिंदल वली गरीब नवाज भाई देखो एक तरफ से भाई साबिर पाक को बेटे कहते हैं, तो दूसरी तरफ से भाई गौसुल आजम दस्तगीर दादा जान भाई साबिर पाक को बेटे कहते हैं। हाँ, तो भाई देखो सैयद उम्मुल वरा के वो प्यारे भाईजान ख्वाजा फखरुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के साथ मिलकर जलाल दिखाएंगे। तो भाई ये साबिर पाक भी तो भाईजान है। सैयद उम्मुल वरा के साबिर पाक भी तो भाईजान है। भाई जब वो भाईजान अपना जलाल दिखाएंगे प्यारे दादा जान से मिलकर, तो भाई अपना जलाल भाई वो दिखाएंगे, तो ये साबिर पाक भाई अपना जलाल कैसे छुपाएंगे? दुनिया वाले जमाने वाले गौर करो, साबिर पाक के फरमान पे गौर करो। ये साबिर पाक भी तो भाईजान है। तो वो भाईजान भाई देखो भाई गौसुल आजम दस्तगीर के साथ मिलकर अपना जलाल दिखाएंगे हर कोई को, तो ये साबिर पाक भाई अपना जलाल कैसे छुपाएंगे? भाई ये साबिर पाक को भी आता है, दुनिया वाले जमाने वाले ये साबिर पाक को भी आता है अपना जलाल दिखाना। तो सुन लो दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो। हाँ भाई गौसुल आजम दस्तगीर के साथ भाई मिलकर ख्वाजा फखरुद्दीन जो भाई जलाल दिखाएंगे, तो ख्वाजा फखरुद्दीन के साथ मिलकर ये साबिर पाक भाई देखो अपना जलाल जरूर दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि भाई हम सब एक है, हम सब एक है, दुनिया वाले जमाने वाले हम सब एक है। नूरानी सलामी में भाई साबिर पाक हाजिर है तो फरमा रहे हैं, बता रहे हैं भाई अब तक भाई देखो जो फरमाया जो बताया। हाँ भाई यही बताया कि भाई जो भाई
देखो वली अल्लाह के दरबार में भाई नहीं जाता है, वली अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता, वली अल्लाह को नहीं मानता है, भाई उनकी बख्शिश अल्लाह ताला कैसे कराता है। अब भाई उसके आगे का फरमाएंगे। भाई यहाँ तो भाई बख्शिश हो गई, हर कोई की बख्शिश हो गई। अब भाई जब बख्शिश होती है किसी बंदे की, हाँ हाँ, किसी बंदे की बख्शिश होती है, बख्शिश कराने वाले अब्दुल कादिर जिलानी जो है, बख्शिश कराने वाले भाई इंदल वली गरीब नवाज जो है, अब बख्शिश हो गई, बख्शिश करा लिए। भाई देखो वो बंदे ने भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर का भाई हुक्म मान लिया, हाँ भाई हिंदल वली गरीब नवाज का भाई फरमान को सुन लिया, हाँ अब्दुल कादिर जिलानी के करम से, भाई हिंदल वली गरीब नवाज के करम से वो बंदे के बख्शा गया। अब भाई अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, किसे फरमाते हैं भाई देखो प्यारे नाना जा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि ए हमारे प्यारे नाना जा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो ये जो कब्र में उतारा गया है बंदा, कब्र के अंदर इसे हमारी जरूरत पड़ी, हाँ हाँ इसे हमारी जरूरत पड़ी कब्र में। अब भाई देखो, अब भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर का कहना भाई मान लिया, सुन लिया, हम भाई ये बंदे से खुश हो गए। मेरे प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये बंदे से बहुत खुश हो गए, हाँ हाँ भाई देखो हमने भाई ये बंदे को माफ कर दिया, हाँ हाँ हमने ये बंदे को माफ कर दिया जो भाई दुनिया के अंदर भाई अब तक भाई गौसुल आजम दस्तगीर से दूर था, दुनिया में भाई अब तक भाई अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार से दूर था, हमारे आल के रोजे मुबारक के दूर था, हमारे भाई जो आल है उनके दरबार से दूर था, हाँ हाँ मगर भाई मर कर कब्र में भाई लौटा है, आया है, तो भाई इसे अब्दुल कादिर जिलानी की जरूरत पड़ी। अब्दुल कादिर जिलानी के फरमान को ये बंदे ने सुन लिया, अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई इसकी हर गलती को माफ कर दिया। हाँ हाँ हम चाहते मेरे प्यारे नाना जहाँ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी माफ कर दो, हाँ हाँ आप भी माफ कर दो, हाँ हाँ प्यारे रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। भाई देखो मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी, भाई देखो जिसे आपने माफ कर दिया उसे हमने माफ कर दिया, हाँ हाँ उसे हमने माफ कर दिया। भाई अल्लाह ताला की बारगाह में फरमाते हैं रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई अल्लाह ताला की बारगाह में फरमाते हैं या अल्लाह मेरे मालिक है मौला, भाई देखो ये बंदे को भाई हमने माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दो, हाँ हाँ एक तरफ भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मुस्कुराते हैं, दूसरे तरफ भाई अल्लाह ताला मुस्कुराता है, हाँ हाँ अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है भाई वो हूरे को बुलाता है, पता है जब कब्र के अंदर कोई मुर्दा बख्शे जाता है अल्लाह की बारगाह में कैसे पहुंचता है वो भी बता रहे साबिर पाक, हाँ हाँ भाई देखो वो हूर को बुलाता है, हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत हूर है, वो बहुत प्यारी हूर है, हाँ हाँ जो भाई अपना पर फैलाते हुए आती है, कब्र के अंदर आती है, हाँ हाँ वो हूर, और भाई देखो वो बंदे को भाई अपने पैरों पर बिठाती है, अपने पैरों पर बिठाती है और भाई देखा उसे ले जाती है जन्नत में, जन्नत का रास्ता दिखाती है वो हूरे। अब भाई देखो यहाँ गरीब नवाज इंदल वली भी यही कहते हैं, हाँ हाँ इंदल वली गरीब नवाज का भी यही कहना है, फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे नाना जहाँ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो हमने ये बंदे को माफ कर दिया, ये मर कर कब्र में पहुंचा तो भाई इसे हिंदल वली गरीब नवाज की जरूरत पड़ी, हाँ हाँ इसे हिंदल वली गरीब नवाज की जरूरत पड़ी, हाँ हाँ तो भाई देखो जब हिंदल वली गरीब नवाज की जरूरत पड़ी हिंदल वली गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ हाँ तो भाई ये बंदे ने भाई गरीब नवाज के फरमान को भाई सुन लिया,
हमारा कहना सुन लिया। हाँ, तो भाई हम खुश हो गए ये बंदे से, हमने माफ कर दिया। मेरे प्यारे नाना जान रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो, आप भी माफ कर दो ये बंदे को। रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं और फरमाते मेरे प्यारे मोइनुद्दीन हसन, हम भी, आपने माफ कर दिया तो हमने भी माफ कर दिया। अब अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर कहाँ जाती है? अल्लाह ताला पर जाती है, अल्लाह ताला को देखा करता है और फरमाता है। अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, या अल्लाह मेरे मालिक के मौला, भाई देख ले, भाई हमने भाई ये बंदे को माफ कर दिया, भाई देखो ये बंदे ने भाई हमारा हुक्म सुन लिया, ये बंदे ने हमारा कहना सुन लिया, भाई जो मर कर कब्र में उतारा गया, तो भाई हमने माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो। अल्लाह ताला भाई अपने प्यारे महबूब को देखकर मुस्कुराता है। प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई अल्लाह ताला को देखकर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर भाई हम माफ कर देंगे ये बंदे को, आपके खातिर और आपके आल के खातिर हम जरूर माफ कर देंगे। तो भाई अल्लाह ताला भाई देखो फरमाता है, भाई वो हूरे आ जाती है भाई कब्र के अंदर आती है और अपने भाई प्यारे प्यारे परों को खोलकर भाई वो बंदे को बिठाती है और भाई उसे भाई जन्नत का रास्ता भाई दिखाती है, जन्नत में ले जाती है, जन्नत में पहुंचा देती है। जब जन्नत में जाता है भाई वो बंदा, वो बंदा जन्नत में जाता है तो दुआ करता है, अल्लाह ताला के आगे हाथों को उठाकर दुआ करता है। क्या दुआ करता है? दुनिया वाले जमाने वाले यहाँ भाई साबिर पाक हाजिर है तो बता रहे आप लोगों को, नूरानी सलामी के जरिए बता रहे, जन्नत में पहुंच गया बंदा, हाथों को उठाकर दुआ कर रहा है, भाई यही दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे मालिक के मौला, भाई दुनिया के अंदर भाई हम भाई अब तक भाई आपके प्यारे लाल, आपके प्यारे शहजादे गौसुल आजम दस्तगीर से दूर थे, हमने भाई देखो उनके दरबार को अब तक नहीं देखा था दुनिया में, उनका भाई दरबार देख कर भाई उनसे भाई यूं दूर होकर भाई चले जाते थे। भाई देखो दुनिया में भाई हम दुनिया में जी रहे थे तो भाई हिंदल वली गरीब नवाज से काफी दूर थे, जब भी भाई हिंदल वली गरीब नवाज के दरबार के सामने गुजरते थे तो गुजरते गुजरते भाई देखो उनको पलट कर नहीं देखा करते थे, भाई यूं उनको देखकर दूरी से निकल जाते थे, मगर भाई उन्हीं के जरिए से, उन्हीं के वसीले से हम बख्शे गए हैं, उन्हीं के जरिए से, उन्हीं के वसीले से भाई हम जन्नत में पहुंचाए गए हैं। सही अल्लाह मेरे मालिक के मौला, भाई आपका ये प्यारा बंदा अब यही चाहता है, भाई मरने के बाद यही चाहता है, भाई गौसुल आजम दस्तगीर को देखना चाहता है, अब्दुल कादिर जिलानी को देखना चाहता है, या मेरे अल्लाह मेरे मालिक के मौला, भाई देखो एक बार भाई हमें गौसुल आजम दस्तगीर से मिला दे, हमें अब्दुल कादिर जिलानी से मिला दे, हम जन्नत में आए हैं भाई उन्हीं के सदके में, उन्हीं के खातिर जन्नत में आए हैं, हमें एक बार भाई गौसुल आजम दस्तगीर से मिला दे। गौसुल आजम दस्तगीर को देखना चाहते हैं हम, जब गौसुल आजम दस्तगीर को भाई जन्नत में देखेंगे तो भाई कयामत के रोज भी भाई उन्हें देखेंगे, कयामत के रोज भी उन्हें पहचानेंगे अल्लाह। भाई अल्लाह ताला फरमाता है, अरे मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, देख ले ये बंदे ने भाई जी पे जी तो भाई तुझे कभी याद नहीं किया, मगर आज ये बंदे को तेरी याद बहुत आ रही है, जन्नत में पहुंचा है तेरे खातिर, तेरे जरिए, तो भाई इसीलिए भाई ये बंदे को आज तेरी याद बहुत आ रही है, तो मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी चला जा, जन्नत में आ जा,
और भाई अपना नजारा दिखा दे भाई ये बंदे को। अल्लाह ताला का फरमान सुनते हैं, हाँ, अल्लाह ताला का फरमान सुनते ही वो अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ पहुँचते हैं। दुनिया वाले जमाने वाले यहाँ गौर करो, नूरानी सलामी के जरिए भाई देखो भाई हर रात भाई आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला का फरमान अब्दुल कादिर जिलानी ने सुना। वो गौसुल आजम दस्तगीर कहाँ पहुँचे भाई, प्यारे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। भाई अदब से बैठ गए, अरे मेरे प्यारे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भाई हम जन्नत में भाई जाकर भाई वो बंदे से मिले जो बंदा आज भाई बख्शे गया है हमारे खातिर। हाँ, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी, तू है इतना प्यारा, तू है इतना प्यारा, भाई देख ले भाई तुझे दुनिया में नहीं पहचाना, मेरे लाल अब्दुल कादिर जिलानी ये बंदे ने तुझे दुनिया में नहीं पहचाना, तुझे दुनिया में नहीं देखा, मगर मरने के बाद जन्नत में पहुंचा तेरे खातिर, तो भाई तेरी याद बहुत आ रही है अब्दुल कादिर जिलानी, वो बंदे को तेरी याद बहुत आ रही है। जहाँ हम आपको भाई इजाजत दे रहे, हम आपको हुक्म दे रहे, जा वो बंदे के पास चला जा। अब्दुल कादिर जिलानी मेरे प्यारे, जा जन्नत में पहुंच जा। हाँ, वो बंदा बैठा है, इंतजार कर रहा है गौसुल आजम दस्तगीर का, जन्नत में बैठा है, इंतजार कर रहा है अब्दुल कादिर जिलानी का कि भाई अभी भाई गौसुल आजम दस्तगीर आएंगे जन्नत के, भाई देखो जो मालिक के मौला है, जन्नत के भाई देखो जो धनी है, जन्नत के जो भाई राजा है अब्दुल कादिर जिलानी। क्योंकि भाई जो जन्नतों के सरदार है इमाम अली मकाम, तो भाई वो इमाम अली मकाम कौन है, गौसुल आजम दस्तगीर के दादा जान है। तो भाई प्यारे दादा जान का तो हक है ना, दुनिया वाले जमाने वाले वो प्यारे प्यारे दादा जान का हक है ना कि भाई सारी जन्नत के जो सरदार बने हैं, तो वो प्यारे दादा जान भाई देखो अपने प्यारे प्यारे पोतों को भाई जन्नत के धनी तो बनाएंगे, जन्नत के राजा तो बनाएंगे अपने प्यारे प्यारे पोतों को। तो भाई देखो वो बंदा जन्नत में भाई इंतजार कर रहा है कि अभी अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे और भाई हम उन्हें देखेंगे, जी भर के देखेंगे, हम उन्हें बहुत जी भर के देखेंगे, इतना देखेंगे भाई कयामत के रोज भी भाई उन्हें भाई याद रखेंगे, कयामत के रोज भी नहीं भूलेंगे हम उन्हें। भाई वो इंतजार करते बैठा है और देखते ही देखते अब्दुल कादिर जिलानी आ गए। कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए, वो बंदे के सामने आ गए। हाँ भाई वो अब्दुल कादिर जिलानी आए, वो खड़े हैं उनके सामने, हाँ उनके सामने खड़े हैं। देखा अब्दुल कादिर जिलानी को, देखा तो देखते ही रह गया, गौसुल आजम दस्तगीर को देखा देखते ही रह गया। भाई दोनों हाथों को भाई जोड़कर भाई अब्दुल कादिर जिलानी के सामने बैठ गया, अब्दुल कादिर जिलानी के सामने बैठ गया। ओ मेरे गौसुल आजम दस्तगीर, ओ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, ओ वलियों के सरदार, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम दुनिया में जी रहे थे, आपको भाई देखो नहीं जान रहे थे दुनिया में, आपको नहीं पहचान रहे थे दुनिया में, आपसे बहुत दूर थे, मगर भाई देखो फिर भी भाई आपने हमें अपना लिया, फिर भी भाई आपने हमें अपना लिया। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, है ये गौसुल आजम दस्तगीर आल किसकी है, भाई देखो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है।
भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो किसके लाल है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल है। अरे मेरे बंदे भाई देखो वो हमारे प्यारे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई हर कोई को माफ करते हैं, दुश्मन को माफ करते, हर कोई को माफ करते हैं। तो ये अब्दुल कादिर जिलानी भाई भला ऐसा हो सकता है कि किसी भाई गुनहगार के गुनाहों को माफ नहीं करे? भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी भी भाई हर कोई के गुनाहों को माफ करते हैं। जा मेरे बंदे भाई हमने आपको माफ कर दिया। हाँ भाई बहुत खुश होता है, जन्नत के अंदर बहुत खुश होता है सब बंदा। और भाई ये जन्नत में भाई राज करता है गौसुल आजम दस्तगीर के करम से। हाँ भाई इसी तरह भाई गरीब नवाज मोइनुद्दीन का भी अंदाज ऐसा ही है। हिंदल वली गरीब नवाज का क्या कहना, प्यारे मोइनुद्दीन हसन का क्या कहना। वाह वाह बहुत शान वाले हैं भाई। हिंदल वली गरीब नवाज बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ताला के बहुत प्यारे हैं। हाँ भाई देखो जो भाई गरीब नवाज हिंदल वली ने भाई फरमाया अल्लाह ताला की बारगाह में कि या अल्लाह मेरे मालिक के मौला ये बंदा भाई दुनिया में भाई हमसे दूर रहता था, हमारे पास नहीं आता था, हमें नहीं जानता था, हमें नहीं पहचानता था, तो क्या हुआ मगर भाई हम इसे जरूर माफ करेंगे। मर कर भाई जो कब्र में आया है बहुत सी नेकी लाया है, इबादत लाया है, बहुत इबादत कर रहा था दुनिया में, कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो भाई हम इनकी कोई नेकी को जाया नहीं जाने देंगे। बदले में भाई इसके इबादत के बदले में ये तेरा प्यारा मोइनुद्दीन भाई हसन इसे माफ करेगा। इसको भाई हर नेकी के बदले में प्यारा मोइनुद्दीन हसन जरूर माफ करेगा। भाई अल्लाह ताला हुक्म देता है। हाँ भाई देखो वो भाई बंदा जन्नत में डाला गया, जन्नत में पहुंचा, जन्नत में बहुत दुआएं कर रहा है, जन्नत में बहुत दुआएं कर रहा है, या अल्लाह मेरे मालिक के मौला भाई देख लो भाई हम प्यारे मोइनुद्दीन हसन को देखना चाहते हैं। दुनिया में भाई हम रह रहे थे, दुनिया में जी रहे थे, तो प्यारे गरीब नवाज हिंदल वली से काफी दूर थे। हाँ प्यारे मोइनुद्दीन हसन से बहुत दूर थे, नहीं जान रहे थे, नहीं पहचान रहे थे, मगर जब भाई देखो उन्हीं के वसीले से हम बख्शे गए हैं, उन्हीं के खातिर उन्हीं के जरिए से भाई हम जन्नत को देख रहे हैं, हम जन्नत को देख रहे हैं। तो भाई ये भाई बंदा भाई प्यारे मोइनुद्दीन को देखना चाहता है, प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज को देखना चाहता है। जब देखेगा भाई गरीब नवाज को देखेगा, जी भर के देखेगा, तो कयामत के दिन भी पहचानेगा। हाँ अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ प्यारे मोइनुद्दीन हसन से फरमाता है, ए मेरे प्यारे मोइनुद्दीन हसन देख ले भाई ये बंदा भाई दुनिया में तुझसे बहुत दूर था, तेरे पास नहीं आता था, हाँ भाई तुझे मानता नहीं था, तुझे पहचानता नहीं था, भाई आपकी शान क्या है, मगर मर के जन्नत में पहुंचा है आपके खातिर, आपकी बहुत याद आ रही है इसे। मेरे प्यारे मोइनुद्दीन हसन आपकी बहुत याद आ रही है, आपको देखना चाहता है, आपको देखना चाहता है। चला जा ये बंदे को भाई आपका नजारा दिखा दे, आपकी ज़ियारत करा दे। हाँ प्यारे मोइनुद्दीन हसन खुश हो जाते हैं। प्यारे मोइनुद्दीन हसन बहुत खुश हो जाते हैं, दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो। आप प्यारे मोइनुद्दीन हसन हिंदल वली गरीब नवाज भाई देखो अजमेर शरीफ से भाई पहुंचे तो कहाँ पहुंचे, हाँ पहुंचे तो कहाँ पहुंचे, अजमेर शरीफ से वो मदीने मुनव्वर में पहुंचे। भाई प्यारे नाना जहाँ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। हिंदल वली गरीब नवाज प्यारे नाना जहाँ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ गए, अदब से सर को झुकाकर और फरमाने लगे
کہ یا میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ جو بندہ جنت میں ڈالا گیا ہے وہ بندہ ہمیں بہت یاد کر رہا ہے، وہ بندہ بھائی ہمیں بہت یاد کر رہا ہے، ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور غریب نواز سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے معین الدین حسن، تو ہے اتنا پیارا، تو ہے اتنا پیارا، ہاں ہاں بھائی جا، ہاں ہاں جا، وہ بندے کو تیری بہت یاد آ رہی ہے، دنیا میں تجھ سے دور تھا وہ بندہ، میرے پیارے لال، میرے پیارے شہزادے معین الدین حسن، آپ سے دنیا میں بہت دور تھا وہ بندہ، آپ کو نہیں مانتا تھا، آپ کو نہیں جانتا تھا، مگر آپ کے خاطر، آپ کے ذریعے مرنے کے بعد بھائی دیکھو وہ جنت میں پہنچا ہے، تو بھائی تیری یاد تو آئے گی نا وہ بندے کو، ہاں ہاں تیری یاد تو آئیں گی، بہت یاد آ رہی ہے تیری، میرے پیارے معین الدین حسن، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے وہ بندے کو، جا جا کر جنت میں وہ بندے کو بھائی اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے، یہ بندہ بھائی قیامت تک تجھے یاد رکھے گا۔ معین الدین حسن خوش ہو جاتے ہیں، پیارے ہند الولی غریب نواز بہت خوش ہو جاتے ہیں، بھائی یوں پلک جھپکتے کہاں پہنچتے ہیں، جنت میں پہنچتے ہیں، وہیں پہنچتے ہیں جہاں بھائی وہ پیارا بندہ غریب نواز کا انتظار کر رہا ہے، ہاں ہاں کہ بھائی ابھی ہمارے پیارے معین الدین حسن آئیں گے، ہم بھائی انہیں دیکھیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پیارے معین الدین حسن آ گئے جنت میں، وہ بندے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاں ہاں پیارے بندے نے دیکھا، ہاں ہاں کہ بھائی ہند الولی غریب نواز آئے ہیں ہمارے سامنے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بھائی اٹھا کر جوڑ کر بیٹھ گئے، ہاں ہاں اور فرمانے لگے، میرے پیارے معین الدین حسن بھائی دیکھو، ہم آپ کے ذریعے، ہم آپ کے ہی وسیلے سے جنت میں پہنچائے گئے ہیں، جبکہ بھائی ہم بھائی آپ کو دنیا میں نہیں جانتے تھے، جبکہ بھائی ہم آپ کو دنیا میں بھائی نہیں پہچانتے تھے، ہم آپ سے کافی دور تھے، ہاں ہاں تب بھی بھائی آپ نے بھائی ہماری بخشش کرا لی۔ ہند الولی غریب نواز فرماتے بھائی بخشش کیسے نہیں کراتے بندے، آپ کی بخشش کیسے نہیں کراتے کہ بھائی دیکھو آپ کے پاس جو اتنی ساری عبادت تھی، آپ بھائی ہر وقت بھائی قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنی ساری نیکی تھی بھائی، تو یہ ہند الولی غریب نواز آپ کی بھائی اتنی ساری نیکی کیسے ضائع جانے دیتے، ہاں ہاں بھائی کیسے ضائع جانے دیتے یہ ہند الولی غریب نواز، اس لیے بھائی ہم نے بھائی آپ کی بخشش کرائی ہے۔ وہ بندہ بہت خوش ہوتا ہے، غریب نواز ہند الولی کو دیکھتے ہی رہتا ہے کہ واہ غریب نواز بھائی کیا پیارے ہے، ہند الولی غریب نواز کیا پیارے ہے، دیکھا ہی کرتا ہے، دیکھا ہی کرتا ہے وہ بندہ، ہاں ہاں بھائی وہ بندہ غریب نواز سے کہتا ہے، میرے پیارے غریب نواز ہند الولی، جس طرح بھائی آپ نے بھائی یہاں بھائی ہماری بخشش کرائی ہے، آپ کے ہی وسیلے سے ہم بخشے گئے ہیں، حشر کے روز بھی بھائی ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ملیں گے، قیامت کے روز بھی ملیں گے، اور قیامت کے روز بھی بھائی آپ بھائی ہماری بخشش کرائیں گے، آپ کے وسیلے سے ہی ہم بخشے جائیں گے۔ غریب نواز فرماتے میرے پیارے بندے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ہاں ہاں تو بھائی دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بھائی کھلا رہا ہے، ایسے بندے کو، تو بھائی دیکھو اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں کھلا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بھائی اس کے محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، سب کچھ بھائی اس کے پیارے محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تو وہ پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، تو بھائی ان کے لال کے صدقے میں ہی لٹا رہے ہیں، بھائی دیکھو کھا رہے ہیں،
तो उनके लाल के सदके में ही खा रहे हैं और बक्से भी जा रहे हैं, तो उनके लाल के सदके में ही बक्से जा रहे हैं। तो भाई ये साबिर पाक नूरानी सलामी में हाजिर है। तो भाई देखो ये साबिर पाक तो भाई नूरानी सलामी में आया करेंगे। हाँ हाँ, ये सैयद उम्मुल वरा जब बैठी है नूरानी सलामी में, हमारी प्यारी बहन, उनके पास आया करेंगे दुनिया वाले जमाने वाले। भाई ये सैयद उम्मुल वरा के पास बहुत बार हाजिर हो चुके हैं। भाई ये कलियर के राजा बहुत बार हाजिर हो चुके हैं। जब जब भाई ये सैयद उम्मुल वरा के पास साबिर पाक भाईजान हाजिर होते हैं तो भाई गौसुल आजम दस्तगीर खुश होते हैं। हिंदल वली गरीब नवाज खुश रहते हैं। हिंदल वली गरीब नवाज फरमाते मेरी प्यारी बेटी सैयद उम्मुल वरा आप अजमेर शरीफ में ही रहेंगी। भाई कोई माई का लाल नहीं है जो भाई आपको यहाँ से निकाल सके। हमारे पास ही रहेंगी, हमारी गली में ही रहेंगी, हमारी नगरी में ही रहेंगी। किसी की ताकत नहीं है भाई आपको यहाँ से निकाल सके। हाँ हाँ, क्योंकि भाई सैयद उम्मुल वरा को पसंद किया है गरीब नवाज हिंदल वली ने। हाँ हाँ भाई, अगर भाई ये सैयद उम्मुल वरा झूठी रहती तो गरीब नवाज यहाँ नहीं रखते दुनिया वाले, जमाने वाले यहाँ नहीं रखते। क्योंकि कहते हैं कहने वाले क्या अजमेर शरीफ में वही जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। अजमेर शरीफ में वही आता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। और भाई देखो अजमेर शरीफ से वही लौटता है जिसे ख्वाजा लौटाते हैं। अजमेर शरीफ से वही जाता है जिसे ख्वाजा भाई भगाते हैं। तो सैयद उम्मुल वरा को अपनाया है दुनिया वाले ना समझ बंदे। यहाँ गौर करो नूरानी सलामी में साबिर पाक के फरमान पर सैयद उम्मुल वरा को गरीब नवाज ने अपनाया है। नूरानी सलामी में 4 साल से बैठ रही है और प्यारे प्यारे सरकार हाजिर हो रहे हैं। अगर ये सैयद उम्मुल वरा झूठी होती तो हिंदल वली गरीब नवाज भाई इसे कब से भाई इसके वतन पहुंचा देते भाई, कभी से भाई इसे देश पहुंचा देते। मगर गरीब नवाज नहीं चाहते हैं। गरीब नवाज हिंदल वली यही कह रहे हैं कि प्यारी सैयद उम्मुल वरा हमारी है। हाँ हाँ, प्यारी सैयद उम्मुल वरा हमारी है और हमारी प्यारी सैयद उम्मुल वरा रोजाना भाई हमारी नूरानी सलामी में बैठा करेंगे। हाँ हाँ भाई, गरीब नवाज यही चाहते दुनिया वाले। क्योंकि भाई ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा प्यारे मोइनुद्दीन हसन बाबा जान से कुछ नहीं चाहती है, कुछ नहीं मांगती है हिंदल वली गरीब नवाज से। भाई ये प्यारी बेटी प्यारे बाबा जान गौसुल आजम दस्तगीर से कुछ नहीं चाहती है, अब्दुल कादिर जिलानी से कुछ नहीं मांगती है। भाई देखो दस्तों बाबा जान से कुछ नहीं चाहती ये प्यारी बेटी सैयद उम्मुल वरा, दस्तों बाबा जान से कभी कुछ नहीं मांगती है। भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कुछ नहीं चाहती है ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा। भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कुछ नहीं मांगती है। तो भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही बंदे पसंद आते दुनिया वाले। दसों बाबा जान को ऐसे ही बंदे पसंद आते हैं जो दुनिया में मांगता है, जो दुनिया का मांगता है, जो खजाना मांगता है, जो दौलत मांगता है, वो दुनिया में ही तरक्की करता है। वो दुनिया में ही तरक्की करता है जो कुछ नहीं मांगता है। भाई देखो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है भाई, देखो उसे भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जो दुनिया में तरक्की करता है भाई वो तो भाई बंदे को नजर आ रहा है, हर कोई को नजर आ रहा है कि भाई वो बंदा ये बंदा कितनी तरक्की कर रहा है, कितना कमा लिया, कितना बना लिया। मगर भाई जो सैयद उम्मुल वरा है ऐसे बंदे ऐसे बंदी भाई देखो किसी को नजर नहीं आता है कि सैयद उम्मुल वरा के पास क्या है। हाँ हाँ, बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है दुनिया वाले जमाने वाले यहाँ बहुत कुछ है भाई। आहिस्ता 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 आगे आगे आपको भाई
सब कुछ पता चलेगा नूरानी सलामी के जरिए कि यहाँ क्या है। माशाल्लाह, बहुत खूब।